friends, welcome on Yourpedia, and as you know, Yourpedia is the one of the main platforms which is mentoring you for engineering services paper 1 preliminary. और ये एग्ज़ाम और ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा क्रूशियल हो गया है आफ्टर इंडियन रेलवेज स्टार्टेड इंडक्टिंग ऑफिसर्स इन IRMS थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम. तो नॉट ओनली जो नई पोजीशंस हैं वो ऐड हो रही हैं, लेकिन पुरानी पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं. तो बहुत सी पोजीशंस को ऐड किया जा रहा है इन IRMS फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो आप में से जो इंडियन रेलवेज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ है नेक्स्ट 2-3 साल में, क्योंकि मेरे को लगता है मिनिमम 300 to 400 पोजीशन का एडिशन होने वाला है हर साल रेलवेज की तरफ से. तो इतने इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो रेलवेज में ऑफिसर्स जाएंगे 300 to 400 जा सकते हैं. नाउ उस पूरी की पूरी IRMS की सिलेक्शन में, क्योंकि टॉप रैंकर जो है वो IRMS लेंगे, इस पूरी IRMS की सिलेक्शन के पीछे एक बहुत क्रूशियल जो इनपुट रहेगा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 प्रीलिम का रहेगा. क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो आपने पढ़ा नहीं होता और टेक्निकल फिर भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं गेट वगैरह के थ्रू, लेकिन ये वाला पेपर में 10 कंपोनेंट हैं और 10 के 10 कंपोनेंट को प्रिपरेशन करना स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है. Yourpedia is providing this module to you since 2018 and we have provided this in a wonderful way. कंसाइज प्रिसाइज इसमें कई चैलेंज हैं. पहला चैलेंज ये है कि आपके पास 600-700 घंटे नहीं होते एक पेपर को तैयार करने के लिए जिसके 200 मार्क्स आएंगे. 600-700 आवर्स यू कैन नॉट डिवोट. सो कैन वी मेक अ जस्टिस जिसमें 300-400 घंटे में आपको ऐसा कंटेंट दे दिया जाए कि जिसमें से आप 100+ मार्क्स ले सकें. नंबर 2, regular small input can be provided by the mentors to you. I mean doubt clearing sessions और डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा इनपुट दिया जाए और सारे टॉपिक्स को करवाया जाए. 10 टॉपिक्स हैं और 10 टॉपिक्स को शुड बी वेरी सिंपली एंड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर शुड बी मेड क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट इज अनदर थिंग. So with that thing in mind, Yourpedia has come out with this wonderful module for you, Engineering Services Paper 1 module. And today my lecture is related to one topic. आपका Values and Ethics is one of the 10 topics. As you know, Engineering Services के आपके Paper 1 Preliminary के अंदर there are 10 topics, current issues to Values and Ethics. And my today's lecture is on Values and Ethics in Engineering Profession, and the topic is whistleblowing. Now, there are certain topics in paper 1 engineering services which are very important, and what is the criteria for us to tell it is very important is in 8 years 2017 to 24 8 years mein if the topic has been asked more than 3 times, 3 or more than 3 times, then that topic becomes very important. And there are two kind of topics in engineering services paper 1. One topic which you can answer on the basis of common sense. अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है you can answer those questions. Another topic is जिसमें डाटा इन्फॉर्मेशन और इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, and maybe next time when he frames that question he may frame different question and difficult question. इस टॉपिक्स में से विसल ब्लोइंग में से all 3 questions which have been asked in 2019 and 20 are very simple, straight forward, common sense based, और difficult question इसमें से नहीं आए हैं. They are the simple questions. I'll show you the questions and you will understand कि yes they are very simple questions. In case friends you want to prepare for this exam very nicely, Yourpedia is the platform where you can do it. All these features exist for this particular exam with Yourpedia. Now let me show you the questions which have been asked from this particular topic, that is whistleblowing. A whistleblower is someone who, if you read these choices आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि whistleblower कौन होता है. What do you mean by that? A whistleblower is someone who A, B, C, D, these 4 choices are there. Next, when should whistleblowing be attempted? कब whistleblowing किया जाना चाहिए? So these are the 4 points he has given and they are the 4 answer choices. ये at the end of the lecture मैं ये आपसे question discuss करूँगा at the end of the lecture और इनका solution भी discuss करूँगा. But I want पहले तुम इस questions को एक बार go through कर लो, इन questions को एक बार पढ़ लो क्या questions हैं, और अपना guess लगाना है तो guess लगा सकते हैं. आप अपना guess लगाइए. At the end of the lecture we are going to discuss about this. Whistleblowing in an organization setup the affects what? Whistleblowing in an organizational setup affects what? क्या इन तीनों में से सबको affect करता है या नहीं करता? These were the questions which were asked in the previous year friends. Now let's start our lecture of whistleblowing. What is whistleblowing? Now we start discussing our lecture on that. Okay, so friends, what is whistleblowing? अगर मैं इसका literary meaning पे जाऊँ, if I tell you what is a literal meaning, that is to blow the whistle.
in the childhood you must have blown the whistle. When you blow the whistle, what happens is people around you get to know that there is somebody who wants to say something. You also know that watchman in the society or buildings or in particular place, the watchman has a whistle, and normally he blows that in the night when everybody sleeps. Why he does that? Watchman is trying to make everyone careful, cautious, and if some wrongdoing is happening in and around, he wants to make you aware about that. So whistle blowing actually is one methodology through which the person who is serving in organization, whether private or public, you can be employee in public organization or private organization, when you blow the whistle, that means some wrong thing is happening, that can be unethical, that can be immoral, that can be illegal, something wrong is happening, and that wrong which is happening, that can affect larger public, not individual, larger public. It can affect country, it can affect environment, it can affect society, it can affect the employees of the organization. The person who does whistle blowing should know exactly that what he wants to say. He should not give wrong information. Number two, it should serve the holistic purpose of the society. It should benefit more people, not the individual who is blowing the whistle. If he is blowing the whistle and he wants to blow the whistle for his benefit, wo galat hai, that is unethical. So in this particular topic we are going to study what whistle blowing is, when it should be done, when it should not be done, in what situations it is wrong, in what situation it is correct, what are the advantages of this, what are the disadvantages of this. And as I told you, if you understand what is whistle blowing, then I am very sure you can answer the basic common question asked in engineering services from this, and very simple questions will be coming from this. At the end of the lecture you will be in position to answer these questions. And there is a whistle blow protection act. I mean, the person who will do whistle blowing, he can be penalized by organization, his organization management, etc. So to protect his interest, what law government has brought in India, that also we will discuss it. So this is the definition, friends. You take this document. Whistle blowing, as I explained to you, is the act of exposing wrongdoing or illegal or unethical activity within the organization. And as I told you, whatever I write with the red color, that means that is very, very important. Black color may not be important, that helps to understand you this topic, but red color is very important. So wrongdoing, illegal, unethical activity within the organization, and the authorities within the organization or the public outside, you can tell everyone. Whistleblower first will try to tell the management, his immediate boss, then his boss. He will try to tell first organization. If the organization is not listening, he will tell outside. So listen carefully, what is the methodology to blow the whistle. Blowing whistle means telling somebody. So that somebody whom he will tell should be first his boss or his immediate senior. If he does not listen, then top management. If the management of the organization is not listening, internally things are not happening, he will blow the whistle outside. Media, authority, ministry, whatever he wants to tell, judiciary, whatever he wants to tell, outside. So whistle can be blown within the organization, outside the organization, but first he should try within the organization. Who can be whistleblower? The person who wants to take care of the whistleblower is not the victim. Whistleblower is a person who is actually doing it for the benefit of other employees or the society or the organization or the country. So he can be employee of the organization, he can be the contractor. Contractor is associated with the organization. He is not employee of organization, he is a supplier of organization, he is the vendor of organization, he is associated with the organization. Yeah, outside observer, any publicly spirited individual, he is not connected to organization anyway, but he is seeing that this organization is doing something wrong, he can also blow the whistle. So the whistleblower can be employee of organization, he may not be employee of organization, and he should have knowledge about what is happening wrong. So these couple of lines are very important. What are some key points of whistleblowing? You disclose something which is happening wrong. It can be unethical, illegal, harmful to the organization, harmful to the public, harmful to the society. And please do not misunderstand the whistleblowing with grievance redressal. Grievance is always a problem to the individual. When you solve the problem of the individual, sir, I am facing the problem, so should I blow the whistle? No.
that is a grievance redressal. It is internal organization mechanism. So if you are facing a problem as individual, आपकी प्रॉब्लम है तो उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल बोलते हैं. अगर सारे लोगों की प्रॉब्लम है, सबको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और ग्रेव प्रॉब्लम है, then it is whistle blowing. Whistle blowing is done only if the problem is serious, grave, broader. स्मॉल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम, पैटी प्रॉब्लम, उसके लिए विसल ब्लोइंग नहीं होता, ग्रीवेंस रिड्रेसल. सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाई यू आर डूइंग विसल ब्लोइंग? It should not be to harm somebody. It should not be to malign the reputation of the organization. It should not be कि मेरे को किसी का नाम खराब करना है, किसी का नुकसान करना नहीं. Intention should be, I don't want to do wrong to organization, but at the same time I want to save some people from the wrongdoing. I want to save the community. I want to save society. I want to save country. I want to save the environment. तो intention is very important. Revenge, personal grudge वो नहीं होना चाहिए. अब अगर आप विसल ब्लोइंग करते हैं तो रिटेलिएशन आता है. ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, दे आर अगेंस्ट यू देन. सो यू नीड टू हैव लॉज विच आर प्रोटेक्टिंग यू. आई विल डिस्कस गवर्नमेंट ने कैसे लॉ बनाए हैं. तो लॉज आर मेड बाय गवर्नमेंट. नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज आर नॉट मेकिंग लॉज टू प्रोटेक्ट. सो दैट गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉज टू प्रोटेक्ट सच काइंड ऑफ विसल ब्लोअर्स. In whistle blowing there should be public interest. Public's interest होना चाहिए, and the main purpose of this whistle blowing is that okay, the organizations become more accountable and transparent. Accountable हो जाए, so they become answerable to the community, right? जो whistle blowing है that is difficult and risky in nature, and it should be taken as a last resort, not as the first step. It should be taken as a last resort. अब डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं, एंड देन डिस्कस करेंगे इसके लॉसेज क्या हैं. बेनिफिट ये है कि ऑब्वियसली यू विल एक्सपोज समथिंग विच इज रॉन्ग इज हैपनिंग, एंड यू कैन प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रॉन्ग. सो यू कैन प्रोटेक्ट द पब्लिक और कम्युनिटी. अकाउंटेबिलिटी, यस, आंसरेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग रॉन्ग, इट शुड बी आंसरेबल, इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. यू आर डूइंग रॉन्ग, वाई यू आर डूइंग रॉन्ग, वो सारी की सारी चीज यहां से आंसर मिलता है, अकाउंटेबल होता है. पब्लिक गुड, इट इज डूइंग समथिंग, इट इज प्रमोटिंग समथिंग गुड इन द society. Like it can be public institute, it can be private institute where whistle blowing is being done, और आप ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं. लीगल प्रोटेक्शन मिलती है विसल ब्लोअर्स को, बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है. सो गवर्नमेंट मेक्स द लॉज सो दैट सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू सच विसल ब्लोअर. तो ये बेनिफिट है. लॉसेज क्या होते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? Retaliation is a very big loss. I mean, your own employees, colleagues, employer, your organization can do wrong to you because you have basically done something wrong. Because the moment you blow the whistle, you are talking against the management, you are talking against maybe organization. Organization का reputation गिर जाएगा, management का reputation गिर जाएगा, तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं. दैट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस. सोशल आइसोलेशन, ऑस्ट्रेसिज्म मीन्स सोशल आइसोलेशन. आपके अपने पीयर्स, आपके अपने फ्रेंड्स, आपके अपने कुलीग्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं. ये बहुत इमोशनल टैक्सिंग होता है, बिकॉज आपके बहुत से जब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे तो आपको इमोशनल ट्रॉमा होता है. फाइनेंशियली आपकी सैलरी रोक दी जाती है, तो आपको फाइनेंशियल हार्डशिप होता है. और कई बार अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, सपोज यू डोंट हैव राइट इंफॉर्मेशन एंड यू जस्ट ब्लू द विसल और वो गलत हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस अगर आप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट यू. तो आपके अगेंस्ट मानहानि का दावा भी हो सकता है, वो भी लीगल है. आपके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी फ्रेम किए जा सकते हैं. सो विसल ब्लोइंग नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते, दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. अब whistle blowing is always a complex thing, and whether you should do whistle blowing or not, it depends upon many factors. बहुत से ऐसे factors हैं जिनके ऊपर ये depend करता है whether you should do whistle blowing or not. There are many factors for that. So what are those factors when you should basically do whistle blowing and when you should not do whistle blowing? अभी मैं वो factor discuss करूंगा when blowing the whistle is unethical. गलत क्यों है? ये गलत है कि इफ यू आर डूइंग इट फॉर पर्सनल गेन, अगर आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, अपने एडवांस, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए कर रहे हो, इट इज रॉन्ग. अगर आपकी इंटेंशन किसी को हार्म करने की है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैलिशियस इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है, तब भी ये अनएथिकल है. अगर आप विसल ब्लोइंग इसलिए कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को रिलीज करना चाहते हैं, बाकियों को बताना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का हार्म कर रहे हैं, इवन देन इट इज रॉन्ग. तो इन केसेस में विसल ब्लोइंग अनएथिकल है. सो
एथिकल है कि नहीं ये डिपेंड करता है आपने विसल ब्लोइंग के पीछे मोटिवेशन क्या था, मोटिव क्या था, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इनके ऊपर ये सारा डिपेंड करेगा। अब कौन से लॉज है इंडिया में जो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करते हैं? आपने फ्रेंड्स ये नाम याद रखने हैं बस, यू आर नॉट टू रिमेंबर व्हाट इज रिटन इन द ब्लैक, ओनली नाम याद रखने हैं कि इंडिया में विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉ हैं। और लार्जली ये लॉ आपके पब्लिक इंप्लॉइज के लिए, गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लॉज प्राइवेट के लिए भी हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन, ये करप्शन एक्ट 1988 करप्शन एक्ट है, उसमें 2018 में ऐड कर लिया गया था। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आपके विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बेसिकली बॉडी विच considers the cases of corruption in central PSUs and government. If there is a case of corruption in central PSU or government, central government, then CVC comes into picture. So yes, CVC will not disclose the information. आप as a whistleblower CVC को approach कर सकते हो. I told you no, outside the organization also you can approach people. You can draw, you can mail CVC. If you do that, तो CVC आपकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन है। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो है ही, दैट इज वन एक्ट इज देयर। नाउ कैन यू टेल मी द सिचुएशन इन विच यू शुड ब्लो द विसल? आपको विसल ब्लोइंग कब करनी चाहिए? यस, यू शुड डू ब्लो द विसल इफ देयर इज सम मिसकंडक्ट हैपनिंग इन द वर्क प्लेस। सपोज वर्क प्लेस के अंदर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। कौन कौन सी होती हैं इलीगल एक्टिविटीज? ये सारी की सारी। सपोज आपके सेफ्टी कंप्रोमाइज हो रहा है, जिससे बहुत इंप्लॉइज को नुकसान हो सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान नहीं रख रही है, सेफ्टी जो आपके होने चाहिए नॉर्म्स उनको स्ट्रिक्ट नहीं कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर बेस पे, एज बेस पे, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। रिटेलिएशन, बेसिकली अगर कुछ करता है एम्प्लॉय तो उसको रिटेलिएट किया जा रहा है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इफ एट योर वर्क प्लेस दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द लार्जर स्केल, यू कैन गो फॉर विसल ब्लोइंग। Government misconduct, suppose the corruption is happening, wasteful spending is happening, the director or the head of the department is doing some expenditure which is highly wasteful, you are trying to cover up the illegal things, you are violating human rights, तो government misconduct है, तब भी कर सकता है। corporate misconduct, because whistle blowing can be done in government setup and non government setup। environment को pollute कर रहा है अगर आपका कंपनी, आपके प्रोडक्ट सेफ्टी को ध्यान में नहीं रख रहा है, कंज्यूमर को, जैसे कई बार बात चलती है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर केमिकल्स मिले हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है एंड यू आर वर्किंग इन दैट कोल्ड ड्रिंक कंपनी, तो दैट हार्म विल बी देयर। एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट के अंदर ऐसे हो सकता है। यह पब्लिक इंटरेस्ट इशू है कि बेसिकली जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उससे पब्लिक को जो बेसिकली नुकसान होगा, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रीज को काट रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग रॉन्ग इज डूइंग, तो इन केसेस में विसल ब्लोइंग आप कर सकते हैं। नेगेटिव कंसिक्वेंसेज क्या होंगे विसल ब्लोइंग के? व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट डूइंग विसल ब्लोइंग? सो बेसिकली विसल ब्लोइंग शुड बी डन वेयर सम पब्लिक गुड इज इन्वॉल्व्ड, आई मीन सिग्निफिकेंट रिस्क्स आर देयर एंड negative consequences can be there. Personal level पे these are the negative things. If you do whistle blowing, retaliation can be there, isolation can be there, psychological stress can be there, financial problem, ये हमने पहले डिस्कस किया। प्रोफेशनली क्या हो सकता है? आपका करियर कंप्रोमाइज हो सकता है, आपके ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम खराब हो जाएगा और टॉक्सिक कल्चर क्रिएट होता है। लेट अस से वन फेलो इन द मीडिया गोज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोगों को पता लग जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन में तो गलत हो रहा है एंड यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका मोरल डाउन होगा, तो दैट इज समथिंग नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उसका रेपुटेशन चला जाता है। तो ये कुछ लॉसेज हैं जो विसल ब्लोइंग से रिलेटेड हैं। कब विसल ब्लोइंग नहीं करनी चाहिए? व्हेन यू शुड नॉट डू विसल ब्लोइंग, जब इशू इज वेरी माइनर एंड यू कैन इजीली रिजॉल्व इट, तो विसल ब्लोइंग की क्या जरूरत है? देयर इज नो क्लियर एविडेंस, जो आप बोल रहे हो कि ऐसा हो रहा है उसका क्लियर एविडेंस आपके पास नहीं है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंसिक्वेंस, आपको पता है आपके अगेंस्ट चीजें हो सकती हैं। आर यू नॉट, इफ यू आर नॉट रेडी, डोंट ब्लो द विसल। देयर आर सेफर अल्टरनेटिव, और भी ऑप्शंस है यार, विसल ब्लोइंग क्यों कर रहे हो? देयर आर अदर ऑप्शन, मिलके बात कर लेते हैं। यू आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन, अगर आप पर्सनल गेन के लिए विसल ब्लोइंग कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट, सो अवॉइड दैट। अब लेट्स डू सम क्वेश्चंस। एज आई टोल्ड यू, विसल ब्लोइंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज 8 साल में 3 बार क्वेश्चन आया, आगे भी आ सकता है।
सिंपल एंड इजी टॉपिक। वो कैसे पता लगेगा? यहां से, विसल ब्लोअर इज समवन हु क्लासिकल म्यूजिक, अडेप्ट इन विसलिंग, बोस्ट ऑफ हिमसेल्फ। 3 चॉइस तो बिल्कुल गलत है, हमने नहीं पढ़ी। सेकंड इज द चॉइस, इलीगल, अनएथिकल, करप्ट एक्टिविटी अगर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको विसल ब्लोअर बेसिकली उसको हाईलाइट करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन शुड विसल ब्लोइंग बी डन? जब ग्रेटर हार्म हो रहा है, तो ग्रेटर हार्म मींस सोसाइटी, बड़ा ब्रॉडर लेवल, ठीक है। क्लियर पोजीशन टू रिपोर्ट, आई मीन यू शुड बी इन क्लियर पोजीशन टू रिपोर्ट मींस आपके पास सारा इंफॉर्मेशन डाटा होना चाहिए, आपके पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, और तब आपको विसल ब्लोइंग करनी है जब आपके पास सारी पिक्चर है। आपके रीजनेबल चांस होना चाहिए सक्सेस का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दैट मींस अगर आप विसल ब्लोइंग करते हो तो कुछ आंसर उसका निकल आएगा। अब मैं इमेजिन, आप एक को केस देता हूं मैं आपको, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है। अगर वहां पे आपने बोला कि भाई साहब गलत हो रहा है, मैंने विसल ब्लो करनी है, आपको पता है इसका कुछ नहीं होना, आप विसल ब्लो कर भी दोगे तो अपना नुकसान हो जाएगा आपका, यू विल मेक लॉस टू योरसेल्फ एंड नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, देन यू शुड नॉट डू विसल ब्लोइंग। रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस शुड बी देयर टू स्टॉप वट एवर यू वांट टू स्टॉप। ऑल अदर लाइंस ऑफ एक्शन यू हैव ट्राइड, आपने सारा ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, तो विसल ब्लोइंग लास्ट में करना है। तो ये ऑल द 4 आंसर चॉइसेस आर करेक्ट फ्रेंड्स, सो दिस आंसर ऑल्सो यू कैन गिव। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव जोटेड डाउन, जो विसल ब्लोइंग हमने डिस्कस किया। सो आपकी इंटेंशन जो है पब्लिक को हेल्प करने की होनी चाहिए। सो दिस ऑल वी डिस्कस्ड एंड दे वर रेलिवेंट पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड वाज दिस, विसल ब्लोइंग सेटअप किसको अफेक्ट करता है? पीयर प्रोफेशनल रिलेशन, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें रिलेशन आपके खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट खराब हो जाते हैं, बट फैमिली रिलेशनशिप का कोई इससे लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर चॉइस इज 1 and 2 ओनली, राइट। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वैसे दोबारा ऐड करके दे दिया, इन केस यू वांट टू रीड इट। इस डॉक्यूमेंट में आप इस सारी इंफॉर्मेशन को रीड करना, दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। So this all we have discussed friends, but whatever I have written with the red color, this is very important, आप इसको go through करना, because this actually is the important part. Now last thing we are going to discuss is Whistleblower Protection Act 2011. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैन कम कि विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में जो लॉ है उसका नाम क्या है? दैट इज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, और उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है विसल ब्लोअर की वो ये है। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, एग्जाम में दिस डेफिनेशन कैन कम। एज पर दिस लॉ there has to be protection of the whistleblower from retaliation, right? He should be dismissal, demotion, transfer, ये चीज़ों से उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और उसके अगेंस्ट नहीं करना है कुछ, उसको सेफ गार्ड्स हमने प्रोवाइड करने हैं। अगर विसल ब्लोअर सीवीसी में कंप्लेंट फाइल करता है तो बेसिकली सीवीसी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं की जाएगी। विसल ब्लोअर को कंपनसेशन एंड रीइंस्टेटमेंट, मतलब अगर सारा प्रोसेस ठीक हो जाता है, विसल ब्लोअर ने जो बोला था वो सही हो जाता है और उसकी जॉब इन द प्रोसेस चली गई, तो उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। देयर इज अ टाइम लिमिट विच इज केप्ट अंडर दिस लॉ। अपीलेट मैकेनिज्म भी बनाया गया है कि आगे आप किसको अपील कर सकते हो, और इसका एम्बिट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हो गया है अब, तो प्राइवेट डोमेन में भी इसका एम्बिट है। कुछ फीचर्स इसके विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के जो कुछ फीचर हैं वो ये हैं। जब भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल करेगा तो उसको अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, हिडन नहीं हो सकता। सीवीसी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा आइडेंटिटी उसकी, एक्सेप्ट टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और पेनल्टी होगी अगर आपने गलत बताया तो। जुडिशरी का रोल क्या है? ये 3 केस हैं फ्रेंड्स जो आप पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विसल ब्लोअर के केस में क्या बात की थी। इन 2011 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू फ्रेम गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर को, आप लॉ बना दो, तो उसके बाद ये लॉ बना था। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर कैन नेवर बी रिवील्ड टू एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड है उसको विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करनी है। सो बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक। आई एम वेरी श्योर आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स।
इंजीनियरिंग सक्सेस पेपर 1 डिफिकल्ट नहीं है, आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।